गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड कंप्लीट किया था। उसके बाद आपको बताया था कि जो नेक्स्ट हमारा है, इफ द बॉन्ड इज पोलर देन वी विल हैव डाइपोल मोमेंट आल्सो। सो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, आज हमने स्टार्ट किया था अपना व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इट इज द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड। अगर बॉन्ड पोलर है तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलैरिटी? डिग्री ऑफ polarity of bond is called dipole moment, and dipole moment is equal to charge into distance, charge of equal magnitude and opposite sign, charge of equal magnitude and opposite sign, just like here. These are charge of equal magnitude and opposite sign. Either we can take negative charge or we can take positive charge because magnitude is same. So this is charge multiplied by distance, or you can say bond length. So it is also, you can also define it as dipole moment is product of magnitude of charge to the distance. Distance means bond length. Charge into distance is called dipole moment, and this dipole moment is a vector quantity. Dipole moment is a vector quantity. Vector quantity means it involves both magnitude and direction. Magnitude and directions both are involved in it. Now when direction is there, then what is the direction? And its direction is always direction is always from positive end to नेगेटिव एंड ऑफ द बॉन्ड का जो पॉजिटिव एंड है वहां से नेगेटिव एंड की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है. It is indicated by an arrow having positive on the tail above the molecule and pointing towards the negative end of HCl. It is indicated by an arrow. An arrow is in direction, that is tail is towards the positive end and head is towards negative end of the bond. Unit of dipole moment is debye or coulombs meter in SI unit and ESU centimeter in CGS centimeter. So let us take about unit. So first we know that dipole moment is charge into distance. So unit is, for charge it is coulombs, and for meter or for distance it is meter. Coulomb into meter, or completely if I say, it may be written as coulomb into meter, or simply coulomb into meter, C into M. And if we take in CGS, then CGS system अगर हम लेते हैं CGS, then dipole moment is equal to charge into distance. Dipole moment is equal to charge into distance. The charge will be in ESU
and distance will be in centimeter. So ESU सेंटीमीटर will be unit. ये CGS में होगी आपकी यूनिट. This is the unit in CGS system and coulomb meter is in SI unit. Keep in mind 1 coulomb is equal to जो यूनिट है हमारी चार्ज की यूनिट, हमने एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज उसको एक यूनिट माना था, एंड दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. और अगर हम CGS में लेते हैं इट विल बी इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU. 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU ये हमारी चार्ज की यूनिट होती है. एक यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. और उसी को अगर हम चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक में लेते हैं तो हमारी 4.8 इंटू 10⁻⁻10 वैल्यू आती है ESU. ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमारा होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. तो वो डिपेंड करता है हमारी यूनिट क्या है, उसी के हिसाब से हम यूनिट चार्ज लेते हैं कूलाम्स में या ESU में. अगर ऐसा यूनिट है तो फिर डिस्टेंस मीटर में, और सेंटीमीटर में अगर वो CGS यूनिट है तो. आल्सो डाइपोल मोमेंट इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ DeBy. DeBy. This is also DeBye. It's DeBy. This is also unit of dipole moment, and 1 DeBy is equal to 10⁻⁻18 ESU centimeter. 1 DeBy is equal to 10⁻⁻18 ESU centimeter, or it is also equal to 3.33 into 10⁻⁻30 coulombs meter. तो ये इसकी यूनिट है डाइपोल मोमेंट की. coulombs meter, ESU सेंटीमीटर और DeBy, where 1 DeBy is equal to 10⁻⁻18. Now if we have diatomic molecule, then there will be only one bond, and dipole moment of that bond, dipole moment of bond is equal to dipole moment of whole molecule. पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट वही होगा जो उस एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है. अगर आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो जो डाइपोल मोमेंट इस एक बॉन्ड का है वही डाइपोल मोमेंट पूरे मॉलिक्यूल का होगा. लेकिन अगर आपका पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, बट फॉर पॉली एटॉमिक molecule contains more than two bonds, contain more than 2 polar bonds. For polyatomic molecules containing more than 2 polar bonds, dipole moment of molecule is equal to vector sum of dipole vector sum of all the dipole moments, या dipole moment of all the bonds. जितने भी बॉन्ड हैं सबके डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम. एग्जांपल लेते हैं हम वाटर. सपोज कीजिए वाटर आपका एग्जांपल है. नाउ इट हैज टू पोलर बॉन्ड्स, partial negative charge on the oxygen atom and partial positive charge and partial positive charge on the hydrogen atoms. Now one dipole moment is there in this direction for this one OH bond,
and one dipole moment is in this direction. Now the net dipole moment will be vector sum of these two dipoles, dipole number 1 and dipole number 2. इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा इस डायरेक्शन में, वो हमारा नेट डाइपोल मोमेंट होगा. कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी ये स्ट्रक्चर है. सो डाइपोल मोमेंट, now oxygen is more electronegative than carbon, so dipole moment will be in this direction, whereas other will be in this direction. Both will cancel each other and dipole moment will be equal to 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. डायरेक्शन भी हमें इंक्लूड करनी है बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर जो सम होता है, वेक्टर सम हमारा होता है रूट μ1 स्क्वेयर प्लस μ2 स्क्वेयर प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल अगर लेते हैं तो कोस जो थीटा है, वो थीटा जो है एंगल है फॉर CO2, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जो कोस थीटा होता है हमारा वो होता है -1. कोस थीटा इज इक्वल टू, या सॉरी कोस 180 इज इक्वल टू कोस 180 विल बी इक्वल टू -1. तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर ऊपर वाले फार्मूले में हमारी, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा मोलिक्यूल का, डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 मोलिक्यूल, वो होगा हमारा रूट μ1 प्लस μ1 एंड μ2 बोथ आर इक्वल इन दिस केस, सो वी कैन से μ1 आल्सो, सेकेंड केस आल्सो, बिकॉज बोथ आर μ1, दोनों ही कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट है, प्लस 2 इंटू μ1 इंटू μ1 इंटू -1 इंटू -1. सो ओवरऑल इसमें जो डाइपोल मोमेंट है वो आपका 0 आ जाएगा. टोटल जो है आपका 0 वैल्यू आ जाएगी. μ1 या μ प्लस μ स्क्वायर प्लस μ स्क्वायर 2 μ स्क्वायर और -2 μ स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू 0. तो जो इनका वेक्टर सम होता है उसका रिजल्टेंट लिया जाता है पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए. नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट? एप्लीकेशन, और जो मेन एप्लीकेशन है इसकी, दैट इज टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर. आयनिक करेक्टर हम एक बार पहले भी कर चुके हैं. परसेंटेज आयनिक करेक्टर अगर हमें निकालना है तो मैंने आपको हैनी स्मिथ इक्वेशन बताई थी लास्ट टाइम, लास्ट में बिल्कुल. ये हैनी स्मिथ इक्वेशन है परसेंटेज आयनिक करेक्टर, क्योंकि पोलैरिटी डेवलप होगी तो आयनिक करेक्टर भी डेवलप हो जाता है. तो कितना आयनिक करेक्टर डेवलप होगा, दैट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 16 चाहिए माइनस चाई बी प्लस 3.5 चाहिए माइनस चाई बी का होल स्क्वायर. अब सेकंड मेथड है परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का, दैट इज फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट. इसके लिए हम कैसे निकालते हैं? परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाई म्यू 100% 100% इंटू 100. अब इसका मतलब क्या है? चलिए, म्यू 100% का मतलब कि अगर हम 100% आयनिक माने तब डाइपोल मोमेंट कितना होगा. अगर हम इसको 100% आयनिक मान लेते हैं तब डाइपोल मोमेंट कितना होगा, वो हमारा हो गया म्यू 100%. और अगर हम जो एक्चुअल मोलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना है वो म्यू ऑब्जर्व्ड है. तो इनकी वैल्यूज पुट करके हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखिए इसमें. फॉर एग्जाम्पल डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr, जो HBr है, इट्स हैव डाइपोल मोमेंट ऑफ 0.78 dBi and inter-atomic spacing is 1.4 angstrom. Inter-atomic spacing या बॉन्ड लेंथ भी आप इसको कह सकते हो 1.41 एंगस्ट्रॉन है.
नाउ व्हाट इज द परसेंटेज आयनिक करेक्टर, और हमें क्या निकालना है, वी आर टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए जरा। इसमें सबसे पहले आप ये मानिए कि सपोज इट इज 100% आयनिक, सपोज ये सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन लेट मोलिक्यूल इज 100% आयनिक। 100% आयनिक कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है एक तरफ। आयनिक बॉन्ड इज बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि हमारा कोवेलेंट क्या होता है, कोवेलेंट होता है जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। यहाँ पर ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, जिससे इस पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम डेवलप हो जाते हैं, और उसकी वजह से पार्शियल पोलैरिटी जिसमें डेवलप होंगी, पोलैरिटी डेवलप होगी तो डायपोल मोमेंट आएगा, डायपोल मोमेंट इसका आता है 0.78 डिवाई। लेकिन हमने ये मान के चलिए, हम ये मानकर चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ब्रोमीन की तरफ ट्रांसफ़र हो चुके हैं, और जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नहीं आएंगे, कंप्लीट एक यूनिट हो जाएगा। अब कंप्लीट एक यूनिट चार्ज हो गया तो इसका मतलब चार्ज यहाँ पर हो गया, या तो हम उसको लेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, या फिर हम उसको लेंगे 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 ESU। अब क्योंकि हमें यहाँ पर यूनिट जो है क्वेश्चन के अंदर यूनिट दे रखी है हमें डिवाई, क्वेश्चन के अंदर जो हमारी यूनिट है वो डिवाई है, तो हम चार्ज CGS सिस्टम में ही लेंगे, मतलब 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द -10। ये ध्यान रखना, अगर आपका डायपोल मोमेंट डिवाई में दे रखा है तो चार्ज आपको CGS में लेना है। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1.41 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1.41 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब क्योंकि हमने CGS सिस्टम लिया चार्ज का ESU, तो ये भी हम 1.41 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में ही लेंगे। तो अब 100% अगर आयनिक करेक्टर तो चार्ज 4.8 इंटू 10⁻10 होगा, और डिस्टेंस जो है वो 1.41 इंटू 10⁻8 है। तब डायपोल मोमेंट कितना होगा इसका, अगर 100% आयनिक करेक्टर होगा तो म्यू 100% जो होगा इसका वो होगा चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज हमारा आया 4.8 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 1.41 इंटू 10⁻8। So now this value comes to be 6.678 into 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। 6.678 इंटू 10⁻18। अब 10⁻18 ESU सेंटीमीटर इज आल्सो इक्वल टू 1 डिवाई। हमने अभी आपको यहाँ पर बताया था यूनिट्स में इसका 1 डिवाई इज ऑलवेज इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो 10⁻18 ESU सेंटीमीटर is equal to 1 डिवाई, so we can say that it is equal to 6.678 डिवाई। डायपोल मोमेंट इज 6.678 डिवाई अगर हम 100% आयनिक करेक्टर मानते हैं तो। ना परसेंटेज आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय म्यू कैलकुलेटेड इंटू म्यू 100%, नॉट कैलकुलेटेड, इट्स म्यू 100% इंटू 100। तो ऑब्जर्व इसका जो 0.78 डिवाई है, जो कि हमने क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0.78 डिवाई है, और अगर हम 100% मानते हैं तब इसका डायपोल मोमेंट आना चाहिए 6.678 इंटू 100। सो परसेंटेज कम्स टू बी 1.68% आयनिक करेक्टर। दिस इज अवर परसेंटेज आयनिक करेक्टर। परसेंटेज आयनिक करेक्टर हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी बात हो गई परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैलकुलेट करना। तो डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन है ये, हाउ कैन वी कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर।
इसके बाद इट इज़ आल्सो यूज्ड, सेकंड एप्लीकेशन आप और ले सकते हैं कि ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजिशंस भी डायपोल मोमेंट से पता लगाई जा सकती है। ऑर्थो पोजिशंस क्या होती हैं? सपोज कीजिए देयर इज वन ग्रुप X is present at this position. So if other halogen is also present at 1-2 positions, 2 halogens are present at 1-2 position, then it is called ortho positions. Not only halogen, any other group may also be present. If one group is present at this position and other is present at the position number 3, this is position number 1, 2, and this is position number 1, 2, 3. Now this 1, 3 position is called meta, and if they are present at 1, 4 position, at position number 1 and 4, column number 1, 2, 3 and 4. Now this 1, 4 position is called para. So by dipole moment, calculating the dipole moment of molecule, we can also determine the positions either ortho, para and meta. So in this regard, पैरा विल हैव ऑलवेज डायपोल मोमेंट 0, क्योंकि इसका जो डायपोल मोमेंट है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक मॉलिक्यूल बॉन्ड का इस तरफ है तो दूसरे मॉलिक्यूल का इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जो ओवरऑल डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट फॉर पैरा इज ऑलवेज 0 या लेस देन मेटा, एंड ऑर्थो विल हैव द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। तो जिसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा वो आपकी ऑर्थो पोजिशन होगी, और जिसका 0 होगा वो पैरा पोजिशन होंगी। तो इस तरह से हम ऑर्थो, मेटा एंड पैरा भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। नाउ वन मोर थिंग इज फेजान्स रूल। whether the bond is ionic or covalent, that can also be determined by Fejan's rule. Now what is Fejan's rule? Fejan's rule is used to determine either ionic or a covalent bond. So in this regard, before telling the Fejan's rule, I would like to tell you the polarization. What is polarization? तो Fejan's rule बताने से पहले जरा हम आपको पोलराइजेशन के बारे में बताते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है। कि when a cation approaches an anion during the formation of ionic bond, cation attracts the outermost electron pair of anion, and the net result is called distortion or polarization. When a cation, suppose ये cation है and there is anion, when this cation approaches the anion, जब ये cation anion की तरफ अप्रोच करता है, उसके नज़दीक जाता है, then it will attracts the outermost electron of the anion, वो इसके outermost electron को अपनी ओर अट्रैक्ट करके it causes polarization और डिस्टोर्शन, जस्ट लाइक दिस। इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है कैटायन एंड डिस्टोर्शंस डेवलप कर देता है, डिस्टोर्शन। नाउ दिस डिस्टोर्शन रिजल्ट्स इन polarities or covalent bond formation. This distortion result is in covalent nature. तो इस तरह से अगर डिस्टोर्शन हो जाती है, जब भी कैटायन नेगेटिव आयन की तरफ जाएगा तो उसके पॉजिटिव या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये कैटायन है, ये एनायन के ये नेगेटिव एंड को या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज उसके अपोजिट एक्यूमुलेट हो जाता है। नाउ दिस इज कॉल्ड डिस्टोर्शन या पोलराइजेशन। डिस्टोर्शन और पोलराइजेशन, और डिस्टोर्शन जितना ज़्यादा होगा कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो किसी बॉन्ड में आयनिक करैक्टर ज़्यादा है या कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है, दैट कैन बी आल्सो डिटरमाइंड बाय पोलराइजेशन विच इज़ गिवन बाय फेजान्स रूल। तो फेजान्स रूल क्या है आपका? तो फेजान्स रूल्स जो है हमारे FAJAN फेजान्स रूल। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर है
size of cation. Smaller the size of cation, more will be its polarizing power. कैटायन का साइज जितना छोटा होता है उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, एंड हैंस मोर विल बी कोवलेंट करैक्टर. जितनी कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी वो पोलराइज ज़्यादा करेगा, और मोर विल बी कोवलेंट करैक्टर. Similarly, second factor is size of anion. Size of anions. Larger the size of anion, anion का साइज जितना बड़ा होगा, more will be its polarizability. वो उतना जल्दी पोलराइज होगा, उतना ज़्यादा पोलराइज होगा. जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उतना उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, एंड हैंस मोर विल बी कोवलेंट करैक्टर. जितना कैटायन का साइज छोटा होगा और एनायन का साइज बड़ा होगा, कोवलेंट करैक्टर उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा. और इसी के बाद थर्ड फैक्टर एक और आ जाता है, चार्ज. मोर द चार्ज ऑन कैटायन और एनायन. कैटायन या एनायन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, मोर विल बी कोवलेंट करैक्टर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा. जितना चार्ज कैटायन या एनायन पर ज़्यादा होगा, कोवलेंट करैक्टर भी उतना ही इंक्रीज होता चला जाएगा. मोर द साइज ऑन, क्योंकि जितना कैटायन पर चार्ज ज़्यादा होगा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से रिलीज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, साइज छोटा होता चला जाएगा, कोवलेंट करैक्टर या पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा हो जाएगा. तो चार्ज चाहे कैटायन पर हो या एनायन पर, जितना ज़्यादा चार्ज होगा कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है. तो यू कैन से ferrous salts if we have Fe+2 and Fe+3. तो जो कोवलेंट करैक्टर है फेरिक आयन में, कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फेरस. एक आपका फेरिक क्लोराइड है, एक फेरस क्लोराइड है, तो फेरिक क्लोराइड विल बी मोर कोवलेंट देन फेरिक क्लोराइड विल बी मोर कोवलेंट देन फेरस. चार्ज ज़्यादा है तो उसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा. वन मोर फैक्टर, कन्फिग्रेशन. pseudo noble gas configurations have more covalent character. कन्फिग्रेशन ये फैक्टर भी काम करता है इसमें, फेजन्स रूल में ही. pseudo noble gas configuration. अब ये pseudo noble gas configuration क्या है? नोबल गैस कन्फिग्रेशन होती है हमारी 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, वेयर एज pseudo noble gas configuration is 18 electrons in outermost cell. Pseudo noble gas configuration. Noble gas configuration is 8 electron. So pseudo noble gas configurations have more covalent character. Pseudo noble gas configurations में कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है. तो ये हमारी आ गई फेजन्स रूल. अब सूडो कोवलेंट करैक्टर का एग्जांपल दे लीजिए. सपोज कीजिए यू हैव क्यूप्रस क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड. वन इज क्यूप्रस क्लोराइड
cuprous, not cupric, sorry, and one is sodium chloride. Now here we have copper plus ion and here we have sodium ion. Sodium ion has configuration 1s2, 2s2 and 2p6, whereas copper has 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 3d10. 310 4s1 होती है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, तो इट इज 3d10. तो आउटर मोस्ट शेल हैव 18 इलेक्ट्रॉन, whereas in sodium outermost electron have 8 electron. So this is your pseudo noble gas configuration, और pseudo noble gas configuration है तो cuprous chloride will be more covalent than sodium chloride. Pseudo noble gas configurations have more covalent character. So this is about Fajans rule. अब इसमें हमारा तीसरे तरह का बॉन्ड आ जाता है, ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड हो गया. एक जरा तीसरी टाइप की बॉन्ड होती है, हमने स्टार्टिंग में जब किया था 3 टाइप के बॉन्ड बताए थे आपको, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट या जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आपका एक कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, बट हेयर बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय वन एटम ओनली. बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय वन एटम. ए कोवलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय ए कोवलेंट बॉन्ड, ए कोवलेंट बॉन्ड इन विच both the electrons of shared pair are contributed by one of the two bonded atom, by one of the two bonded atom. सिर्फ एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है. एग्जाम्पल लीजिए इसमें जरा. फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए वी हैव अमोनिया NH3 in which nitrogen has one lone pair of electron, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, and H ion. H ion do not have any electron. H ion do not have any electron, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो H पॉजिटिव में वो इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो चुका है. Now it will produce, if they combines, then it produce ammonium ion. Now in ammonium ion, nitrogen which have 5 valence electron share 3 electrons with 3 hydrogen atom, have one lone pair of electron. Hydrogen which do not have any electron, now nitrogen shared its both the electrons, the lone pair of electron है, donate this electron pair towards hydrogen. Now this bond is called coordinate bond, and this coordinate bond is represented by an arrow. This covalent bond is represented by an arrow in which tail is towards the donor atom and head is towards the acceptor atom. tail जो होगी इसको ऐसे लिख देते हैं, डोनर एटम टू एक्सेप्टर एटम. इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ अमोनियम आयन में शो किया है. इस अमोनियम आयन में नाइट्रोजन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, बोथ द इलेक्ट्रॉन पेयर आर डोनेटेड बाय नाइट्रोजन. अगर अब इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन इसको देते हैं तो वो कैसे दिया जाएगा. नाइट्रोजन हैव 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय 1 हाइड्रोजन, सेकंड इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय थर्ड हाइड्रोजन. Now next 2 electrons, the lone pair electron is shared between 4th H positive ion. Now this whole of the ammonium ion have positive charge. अगर मैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ग्रीन दिखाता हूँ तो ये वे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऐसे शो होंगे. नाइट्रोजन हैव 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हैव 1 इलेक्ट्रॉन और H पॉजिटिव डोंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन. So these are the 5 electrons of nitrogen
and the red electrons, these are the electrons of hydrogen. Now these two electrons which are shared between nitrogen and H positive ion, both are the electrons of nitrogen. Now such bond is called coordinate bond, और रिप्रेजेंट किया जाता है इसको एरो से, रिप्रेजेंटेड बाई एरो। और एरो से कैसे, उसमें आपकी डोनर एटम की तरफ आपकी टेल होगी और एक्सेप्टर एटम की तरफ हाइड्रोजन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द कंपाउंड विच हैव all the three types of bond, all the three types of bond. Example is ammonium chloride, in which nitrogen and hydrogen have covalent bond, nitrogen and H positive have coordinate bond. Now ammonium ion and chloride ion have ionic bond. तीनों तरह के बॉन्ड इसमें होते हैं। चलो आज हम इतना ही करते हैं, आगे हम इसमें लेविस सिंबल्स लेंगे, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।